Hello students, today we will discuss Runge-Kutta methods for solving ordinary differential equations. There are four Runge-Kutta methods. First order Runge-Kutta method. First order Runge-Kutta method has a formula that y1 is y0 plus hf of x0 y0, where what is f of x? F of xy will be the derivative dy by dx. Function of two variables ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ. h is a step size, y0 is initial point, x0 is initial point. So y1 is a first approximation. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कढ़नी होएगी तो नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1. सो y2 विल बी y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1. दिस मैथड is similar to the Euler's method. सेकेंड ऑर्डर Runge-Kutta मैथड is the first approximation जो है y1 is y0 plus 1 by 2 k1 plus k2. y0 is initial point, a first approximation है y1. What are k1 and k2? तो k1 जो है that is h into f of x0 y0. k2 जो है h is f of x0 plus h y0 plus k1. तो जो पीछे k1 कढ़े वो y0 plus k1 हो जाएगा. x0 इनिशियल पॉइंट, y0 इनिशियल पॉइंट, वैल्यूज़ दित्तियां होणगियां इनिशियल. सो इस तरीके नाल k2 निकल जाएगा एंड k1 plus k2 divided by 2 plus y0 will give us first approximation. In the third order RK method, what is y1? y1 is y0 plus 1 by 6. y1 is first approximation of the solution. y0 is initial approximation of the solution. 1 by 6 k1 plus 4 k2 plus k3. So k1, k2 and k3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ formulas ਨੇ. k1 is h f of x0 y0. ठीक है, all these are the formulas. ਤੇ k3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ k ਡੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ k ਡੈਸ਼ ਫਰਦਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਆਰਕੇ ਮੈਥਡ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਵੀ Runge-Kutta ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ Runge-Kutta ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. तो इस गिवन टर्म्स होंदियां ने dy by dx इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ये इनिशियल वैल्यूज़ होंदियां ने y एट x0 इज़ y0. तो असी पहला कैलकुलेशनस करनियां ने वैल्यूज़ फॉर k दियां. तो फस्ट असी k1 कैलकुलेट करना है. k1 इज़ h ऑफ f ऑफ x0 y0. दैन k2 h f ऑफ x0 प्लस h by 2 y0 प्लस k1 by 2. नेक्स्ट कैलकुलेशन k3 है, दैट इज़ h f ऑफ x0 प्लस h by 2 y0 प्लस k2 by 2. पिछली वैल्यू k2 यूज़ होगी इसके अंदर. दैन k4 इज़ h f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ k ਇਜ਼ 1 ਬਾਈ 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4. ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਫॉर k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. y1 इज़ y0 plus k ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ. तो फस्ट अप्रॉक्सीमेशन तो जो सैकेंड अप्रॉक्सीमेशन ते जाना है तो हरेक क्वेश्चन ये अंदर जिन्हें वैल्यूज़ फॉर के सी उन्होंने रिप्लेस कर देना है x0 बाय x1 एंड y0 बाय y1. इदा साड़ी सैकेंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाऊगी. जिन्ने भी फॉर्मूले सी नॉट की जगह पर 1 शिफ्ट हो जाऊगा. दिस विल गिव अस द सैकेंड अप्रॉक्सीमेशन एंड सो ऑन. इस तरीके नाल थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कढ़नी होएगी तो रिप्लेस x0 बाय x2 इन एवरी वैल्यू फॉर k. Now we will learn how to apply these formulas. So using RK's method of fourth order, solve this ordinary differential equation where initial values are given and we have to find the value. Solve करना है. values कढ़नियाँ ने y दियाँ at the point 0.2 and 0.4. तो firstly at 0.2 calculate करांगे. ये साडा given function हो गया. It is a function of xy. Function of xy. y square minus x square upon y square plus x square. Initial point x0 is 0, y0 is 1. So this is function of xy. इनू correct कर लेना है. Function of xy y square minus x square plus x square. तो हुण असी चलते हैं कि फर्स्टली असी किहड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y एट द पॉइंट 0.2. सो जो गिवन वैल्यूज़ वो लिखते हैं x0 0, y0 1. 0 तो शुरू करके असी किहड़े पॉइंट तक जाना है 0.2. सो वट विल बी वैल्यू ऑफ h. कितना स्टैप लिया आपां h इज़ 0.2. तो फर्स्ट कैलकुलेशंस की करनियां ने k1 दियां. वट दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर k1. k1 इज़ h f ऑफ x0 y0. h कितना अपने को 0.2. x0 इज़ 0, y0 इज़ 1 यानी कि f ऑफ 0 1. एंड वट इज़ f? दिस इज़ आवर f ऑफ x y ना. सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. x इज़ 0 एंड y इज़ 1. This will give us k1. For finding the value of k2, so this is the formula for k2. h f of x0 plus h by 2 y0 plus k1 by 2. x0 is 0. h is 0.2. 0.2 divided by 2. y0 is 1.
K1 ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 0.2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ f of 0.1 and 1.1 what is f ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ y square minus x square divided by y square plus x square। ਸੋ y ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ 1.1 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸਕੁਆਇਰ 1.1 ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਸਕੁਆਇਰਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ, ਨੀਚੇ ਐਡ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ K2। तो असी ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहते हैं, वी नीड मोर एक्यूरेसी, सो राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो असी 5 डिजिट्स तक अपना आंसर लिख रहे हैं टू गेट अ मोर एक्यूरेसी इन द आंसर। नेक्स्ट वैल्यू फॉर K3 इज़ एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई 2 वाई नॉट प्लस K2 बाई 2। तो वैल्यू सबसटीट्यूट करते हैं, एच इज़ 0.2, एक्स नॉट वॉज 0, एच आप 0.2 लिया, वाई नॉट इज़ 1 एंड K2 हुने आप कैलकुलेट किया इज़ 0.19672। डिवाइड किया स्टैप बाय स्टैप, पहले इनू सॉल्व किया इस 0.1, इनू ये अंदर पहले डिवाइड किया इस 0.8 समथिंग, ठीक है। उस तो बाद असी 0.09836 दैन एडिट 1, तो स्टैप बाय स्टैप सारी कैलकुलेशन की। सो नाउ वी नीड दिस एफ ऑफ 0.1 एंड 1.09836। तो ये साडा वाई की प्लेस से सबसटीट्यूट होनी है वैल्यू, तो ये एक्स की प्लेस से वॉट इज़ आवर एफ ऑफ एक्स वाई इज़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर्स किते पहला, स्क्वायर्स करन तो बाद उपरों सबट्रैक्शन की एंड नीचे एडिशन, दैन अगेन डिवीजन इनटू 0.2। सो दिस विल गिव अस K3। नेक्स्ट इज K4 इज एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3 आप निकालिया सी, एक्स नॉट इज 0, एच 0.2, वाई नॉट 1, K3। पहले इन्हों सॉल्व किया आप, then substitute in y square minus x square y square plus x square। so this will give us the value for K4 दी वैल्यू आ जाएगी। तो सारी K's कैलकुलेट हो गए till now। so what will be K is 1/6 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4। substitute values for K1 K2 K3 and K4। कैलकुलेशनस बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करनी है क्योंकि असी 0.1 की एरर भी जी हैगी असी नहीं लैके आना चाहते, ठीक है। सो K इज़ 0.19599। मैक्सीमम जिन्नियां वैल्यूज़ लिखांगे तो आंसर थोड़ा बुक नालों चेंज भी हो सकता है। जो 4 डिजिट्स लिखोगे आंसर कुछ होर आऊगा, अगर मैक्सीमम 5 डिजिट्स लिख लिया आंसर च थोड़ी होर वेरीएशन हो जाएगी। 2 डिजिट लैके चलोगे तो 2 डिजिट या 3 तो असी लैनिया ही नहीं, मिनीमम 4 तो असी लिखनिया ही है डेसीमल तो बाद, एंड होर ज़्यादा चाहिए तो 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल फाइनली K आ गया। नाउ व्हाट इज़ y एट 0.2, तो फार्मूला की सीगा, यानी कि y1 का फार्मूला y1 सी y नॉट प्लस K, y नॉट इज़ 1 एंड K, तो ये आ गया साडा y1। नैक्सट वैल्यू सानू किहदे ते चाहिए 0.4 ते। हुण असी अगे शिफ्ट होंदे हैं इत्थों, तो जो असी y एट y1 कड्ढनी सी तां असी y नॉट नू अपना इनीशियल पॉइंट मन्निया सी x नॉट नू। हुण जो असी y2 कैलकुलेट करनी है तो साडे इनीशियल पॉइंट की होणगे x1 एंड y1। एच फिर तो 0.2 है क्योंकि असी 0.2 तो अगे कितने शिफ्ट होना है 0.4 ते, तो स्टैप कितना लिया आपने 0.2। इनीशियल पॉइंट्स तो y1 ते पहुँचे, y1 तो किस ते पहुँचना y2 ते, तो y2 कैलकुलेट करने के लिए x1 एंड y1 हर जगह ते यूज़ होंगे। तो पहला सारे केस कैलकुलेट कर लेंगे। K1 इज़ एच एफ ऑफ x1 y1, एच इज़ 0.2, x1 0.2 एंड y1 जो असी कैलकुलेट किया है, तो फॉर्मूले के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया। दिस विल गिव अस द वैल्यू फॉर K1। नैक्सट कैलकुलेशन इज़ K2 इज़ एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई 2 y1 प्लस, बस वही सेम फॉर्मूला है, वी हैव जस्ट रिप्लेसड नॉट विद 1। जिथे जिथे नॉट आ रहा सी बस आ 2 प्लेसिस से नॉट सी ना पहला, हुण इत्थे 1 आ गया, तो x1 हो गया, h हो गया, y1 हो गया एंड K1 जो पिछे कैलकुलेट किया सी। पहला इन्हों सॉल्व करना अंदर सैपरेटली इत्थे तक, तो सॉल्व करने तो बाद हुण एफ की वैल्यू च सबसटीट्यूट करते हैं। एफ की सीगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंडिविजुअली फाइंड द स्क्वायर्स, कैलकुलेटर के उत्ते पूरी वैल्यू लिख के 2 डिजिट लिख के नहीं करना, दैन ऐड। सो दिस विल गिव अस K2। इत्थे मेरी जी K2 की वैल्यू आई है बुक नालों चेंज आई है क्योंकि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स लिखिया ने। दिस मीनस आवर आंसर इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। सो दैन इज़ K2 अपने सेल कर लिया। नैक्सट इज़ K3 इज़ एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई 2 y1 प्लस K2 बाई 2। तो K2 अपने को सी y1 जो असी हुणे कैलकुलेट करे पिछे y एट 0.2 इज़ आवर y1
तो पहले सॉल्व करें, ठीक है, दैन सबसटीट्यूट इन द फॉर्मूला। कैलकुलेशनस बहुत ज़्यादा ने, डिमांडिंग ने, तो ये ध्यान नाल करनी है। इदा ही K4 HF(x1 + HY1 + K3) वैल्यू सबसटीट्यूट की हैं, दोनों ऐड किया, इन्हों ऐड किया, दैन y² - x² y² + x² परफॉर्म किया। दिस विल गिव अस K4 आ गया अपने कोले। हुण फाइनली K दी वैल्यू, K इज़ 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4। K1 K2 K3 K4 सबसटीट्यूट किते। पहले सिर्फ इन एक स्टैप नू सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2, दैन ऐड ऑल द डिजिट्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ नीडेड, then divide by 6, so this will give us K. Then what will be y2 will be y1 plus K, तो y1 plus जो K calculate होए, this will give us y at 0.4, so this is R K method।